Okay, now we will be talking about monetary policy framework और monetary policy framework में क्या क्या चीज़ें आती है, राइट। तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिनको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, जब वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी एग्जीक्यूट करने चाहती है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करती है। सो इट functions within an articulated monetary policy framework और उसी monetary policy framework के अंदर 3 basic components होते हैं। Now what are those 3 basic components? पहले तो objectives of monetary policy, second is your analytics of monetary policy and third is the operating procedures. So what are the 3 basic components of monetary policy framework? Objectives of monetary policy, analytics of monetary policy and operating procedures. Analytics of monetary policy में focus किस पे होता है? Transmission mechanisms पे, which focuses on the transmission mechanism. और operating procedure पे focus किस पे होता है? Operating targets and instruments. So I hope it is clear that when the central bank wants to function, it functions with an articulated monetary policy framework which has 3 basic components: objectives of monetary policy, analytics of monetary policy which focuses on the transmission mechanisms, and the operating procedure, third framework, operating procedure, which focuses on the operating targets and instruments, right? Have a discussion or not a discussion, basically we will talk about why जो हमारे monetary policy के जो objectives होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, उनकी objectives coincide करते हैं overall objectives of the economic policy। और ये क्यों coincide करते हैं, what is the reason behind it, all of these things will be dealt with now, right? So if they ask you in the question कि objectives of monetary policy generally coincide with the overall objectives of economic policy, why, what is something behind this line, right? So what would be written? The objectives set for the monetary policy, पहले तो बोला है कि जो monetary policies के ऑब्जेक्टिव्स है जो जिनको हमने सेट किया है वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो एक गाइडेंस देता है हमारे पॉलिसी मेकर्स को, सो आई होप इट इज़ क्लियर व्हाई ऑब्जेक्टिव्स which are set for the monetary policy are important. They are important because they provide explicit guidance to policy makers. और जो हर एक कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो रिफ्लेक्शन होता है उसी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी का। सो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज इन फैक्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, और इसी कारण की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी से कोइंसाइड करते हैं। सो आई होप दिस फर्स्ट पर्टिकुलर पैराग्राफ इज क्लियर। फर्स्ट थिंग व्हाट इज गिवन, ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट क्यों है मॉनेटरी पॉलिसी के? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू पॉलिसी मेकर्स। सेकेंड थिंग, जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी से कोइंसाइड क्यों करते हैं? क्यों, वाई? तो बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स इकोनॉमिक policy. Monetary policy of a country is in fact, it's just a reflection of its economic policy, and that is why there are significant differences. फिर significant differences है among different countries in respect of the selection of objectives, implementation procedures and tools of monetary policies. जो differences है वो क्यों है? It could be either due to differences in underlying economies, it could be due to differences in financial systems, it could be due to differences in the infrastructure of financial market. So इन सब कारणों की वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होते हैं 3 चीज़ों के लिए: ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर्स करना एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इफ दे आस्क यू कि क्यों थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स, क्यों एक कंट्री between 2 countries it is different, और या फिर if they ask you the question like objectives of monetary policy क्यों coincide करते हैं economic policy के objectives से, then you can write down all just 2-3
point, right? So what did we learn over here? Important क्यों है objectives of monetary policy? Because they provide explicit guidance to policy makers. Monetary policy जो है वो एक country वो रिफ्लेक्शन है उस कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी का, एंड इसलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जनरली कोइंसाइड विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी. और साथ ही साथ कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, वेयर डिफरेंसेस अबाउट सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर्स एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. वो डिफरेंसेस क्यों होते हैं? ड्यू टू underlying economies, due to differences underlying economies, financial systems and financial market, right? Okay, there are some of the monetary policy situations in the context of Indian economy. तो वो situations क्या होंगे कि इनिशियल पीरियड से पहले क्या objectives हुआ करते थे, उसके बाद क्या changes आए, तो we will all talk about that. So when they question you about what are the objectives of monetary policy, तो सीधा then coming to the point, let's go back to a little bit of history कि पहले प्री कीनीशियन पीरियड, तो कीनीशियन पीरियड से पहले का जो मॉनेटरी पॉलिसी था उसका एक ही कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव था कि मेरे को एस्टैब्लिश और मेंटेन करने हैं स्टेबिलिटी इन प्राइसेस. सो कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी इन प्राइसेस वाज अ सिंगल वेल एक्नॉलेज्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज. तो प्री कीनीशियन पीरियड से पहले क्या ऑब्जेक्टिव था कि I want to establish and maintain stability in prices. That is it. तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद Great Depression came into picture because things were not working. Objectives बराबर नहीं थे और associated economic crisis आने लगे, which marked a turning point रिजल्टिंग इन अ मेजर शिफ्ट. तो ग्रेट डिप्रेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को शिफ्ट करना पड़ा टू मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. हमें सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें फुल एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहिए, राइट, एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहिए. तो ये प्री कीनीशियन पीरियड और ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये सबको कंबाइन करके द मोस्ट कॉमनली परस्यूड ऑब्जेक्टिव्स जो मॉनेटरी पॉलिसी के होते हैं ऑफ अ सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड, मेनली कॉमनली ये 3 ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही हैं. व्हाट वुड दे पर्टिकुलरली बी? दे आर नथिंग बट योर प्राइस स्टेबिलिटी, जो प्री कीनीशियन पीरियड से के पहले भी था, मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीविंग अ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. तो आई होप इट इज़ क्लियर कि प्री कीनीशियन पीरियड के पहले मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव था और ग्रेट डिप्रेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से ऑब्जेक्टिव्स थोड़े शिफ्ट हो गए टू फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इसकी वजह से 3 कॉमनली परस्यूड ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अक्रॉस द वर्ल्ड. क्या है वो? प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, अचीव करना हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड maintenance of full employment as well. So I hope it is clear what are the most common pursued objectives of monetary policy. हमारे जो सेंट्रल बैंक होते हैं, दैट इज आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका एक एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. उनके प्रियम्बल में क्या लिखा गया है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो रेगुलेट करे द इशू ऑफ बैंक नोट्स, इशू ऑफ पैसों को इशू करना और रिजर्व को रखना विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया. स्टेबिलिटी और सिक्योर करने के लिए वो रिजर्व्स भी रखते हैं और साथ ही साथ करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को ऐसे ऑपरेट करेंगे कि वो कंट्री के लिए एडवांटेजेस हो. सो टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई? रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, regulate the issue of bank notes, keeping the reserves with a view to securing monetary stability in India and to operate currency and credit system of the country to its advantage. ये ऑब्जेक्टिव एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोलता है कि हम प्राइस स्टेबिलिटी चाहते हैं, इवन दो इफ इट इज़ नॉट directly told by the RBI Act, but somehow this is one of the
objectives as well. So that is why they say that it is noted that though price stability as an objective is not explicitly spelled out, मॉनेटरी पॉलिसी जो है इंडिया का वो इवॉल्व ही इसी के अंदर करता है कि उनको मेंटेन करना है प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंश्योर करना है एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू होम टू द प्रोडक्टिव sectors of the economy. So even though price stability is not explicitly spelled out in the RBI Act का objective, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा ही रहा है कि उसको मेंटेन करना है प्राइस स्टेबिलिटी और इंश्योर करना है कि एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट रहे टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. सो कहीं पे भी जाओ प्राइस स्टेबिलिटी तो एक नेसेसरी प्री कंडीशन है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए. सो फंडामेंटली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इवन दो दैट वी हैव स्टडीड कि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, बट जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा वो हमेशा यही रहेगा कि वो मेंटेन करे एक जुडिशियस बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. दैट इज दिस वाज प्री कीनीशियन पीरियड के टाइम पे और ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद के टाइम पे. सो हमेशा प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में बैलेंस मेंटेन करो, यही होगा हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी policy, right? What are some of the other multiple objectives of monetary policy, right? What are some of the other objectives? It could be economic growth जो पहले ही डिस्कस किया था हमने. It is your rapid economic growth. फिर डेट को मैनेज करना, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, and then it is your exchange rate का stability and external balance of payment equilibrium. तो over the period ये सारे objectives भी निकलने लगे, like rapid economic growth, debt management, moderate long term interest rate, exchange rate stability and external balance of पेमेंट इक्विलिब्रियम. एंड अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की जाए तो जैसे जैसे उनकी नीड्स डेवलप हो रही है उनके मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स भी इनकॉर्पोरेट होते गए. लाइक कुछ ऑफ दी objectives would be like, given the development needs of the developing countries, the monetary policy of such countries are also incorporate explicit objectives जैसे कि हमारा already as discussed इकोनॉमिक ग्रोथ तो मेंटेन करना ही है, साथ ही साथ न्यूली इंसर्टेड ओवर द ईयर्स ये ऑब्जेक्टिव भी डाला गया, इंश्योरिंग एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स, इंश्योरिंग एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स. साथ ही साथ सस्टेन करना एक मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए दे हैव टू मेक श्योर कि वो सस्टेन करे एक मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. साथ ही साथ क्रिएशन ऑफ एन एफिशिएंट मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के जो भी सिक्योरिटीज़ बोले वो गोल्ड बॉन्ड हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, कुछ भी हो, उनका एक एफिशिएंट मार्केट क्रिएट करना भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया ओवर द पीरियड ऑफ ओवर द ईयर्स कमिंग, राइट. सो नेक्स्ट, लेकिन आजकल के तारीख में जो हमारे फाइनेंशियल और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. रीज़न बीइंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी and the progressive economy and the financial sector reforms and the finance. So over the today, as of today, consideration of financial and exchange rate stability have assumed greater importance in India recently. ठीक है, तो I hope it is clear what are the objectives of monetary policy. पहले हमने इधर क्या पढ़ा था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है वो इकोनॉमिक ओवरऑल वर्ल्ड के इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करेंगे, वो कोइंसाइड करेंगे ही. रीज़न बीइंग बिकॉज देयर आर डिफरेंसेस इन अंडरलाइंग इकोनॉमीज, फाइनेंशियल सिस्टम्स डिफरेंट है और फाइनेंशियल मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग है. तो इन 3 कारणों की वजह से जो डिफरेंसेस होते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होंगे. प्री कीनीशियन पीरियड से पहले ऑब्जेक्टिव क्या हुआ करता था कि हमें एस्टैब्लिश और मेंटेन करना है स्टेबिलिटी इन प्राइसेस. लेकिन ग्रेट डिप्रेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ऑब्जेक्टिव को टर्न किया गया टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज वेल. तो इसकी वजह से कुछ कॉमन परस्यूड ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए. प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, हाई लेवल ऑफ
इकोनॉमीज ग्रोथ अचीव करना एंड फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना। फिर बोला गया कि आरबीआई वैसे तो अपना ऑब्जेक्टिव बताता है कि उसको बैंक इशू करना है, रिजर्व्स रखने हैं विद व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, और करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करना है कंट्री को एडवांटेज के हिसाब से। तो इन्हीं सब में एक छुपा हुआ पॉइंट निकलता है कि इट इज़ इनडायरेक्टली वांटिंग कि प्राइस स्टेबिलिटी हो। तो प्राइस स्टेबिलिटी तो होना ही चाहिए, एंड मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स। तो इस वजह से प्राइस स्टेबिलिटी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि वो मेंटेन करे एक बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स निकल के आए, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, डेट मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को मॉडरेट रखना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी रखना, एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इक्विलिब्रियम एंड स्टफ। बट ओवर द पीरियड जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनको उनके नीड्स डेवलप होते होते कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकलने आ गए, लाइक योर मेंटेनेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ, एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर, मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स टू encourage इन्वेस्टमेंट्स, क्रिएशन ऑफ एन एफिशिएंट मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आजकल के ज़माने में फाइनेंशियल और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। कभी कभार जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक दूसरे से ही कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट यू कुड राइट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स जो इन्फ्लेशन को भी नीचे रखना है, अनएम्प्लॉयड को भी नीचे करना है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एट सर्टेन केसेस। फिर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, और अगर इन्फ्लेशन a policy targeted at controlling inflation is very likely to generate unemployment। अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, उनको एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि वो अप्रोप्रिएट ट्रेड ऑफ कर सके और एक कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके, एंड try their best to maintain a balance between the various monetary policy objectives, right? So I hope this is clear, or this is all about the objectives of monetary policy. Thank you.